Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, we have already started with the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 5 Unit 3 Chemistry of Inner Transition Elements. So friends, so far now we have discussed about the lanthanide and actinide series, their position in periodic table, their oxidation state, their electronic configuration, and then we have discussed about the very important part of them, that is lanthanide contraction. So we have studied that in case of lanthanide the size of the lanthanons decreases from lanthanum to lutetium, which is called as lanthanide contraction, and because of that we can observe some kind of consequences. Consequences means its effect. Okay, so what were those effects? They were decreasing basicity. We have seen that the hydroxides of lanthanide show decreasing basicity. Similarly, it shows variation in properties of lanthanide. Though lanthanides have very same size, very same charge, but because of the decreasing size, little bit difference in their properties are observed. Similarly, they show similarities between yttrium and lanthanol. Okay. Next property was similarities between zirconium and hafnium. Then we have discussed about the abnormally high densities of post lanthanide. The elements which are after lanthanides show very high densities, and then we have discussed about the noble characters of post lanthanide. Okay, they show noble characters like platinum, etc. So this much consequences we have discussed because of lanthanide contraction. Then we have seen the magnetic and spectral properties of lanthanide. So we have seen that in case of lanthanide, the magnetic properties are together effect of spin momentum and orbital momentum. Okay, spin only momentum and orbital momentum both are combined in case of lanthanides, and therefore we can see high magnetic properties. The magnetic momentum which we see in case of lanthanides are very high. Then we have seen the colors. Okay, colors in lanthanides, when there is addition of electron in 4f orbital, and when it increases from 0 to 3, the color become more dark. Which color? The color of the complexes of lanthanides. And when it increases more from 4 to 7, again the color becomes lighter. Okay, so this was the interesting fact about lanthanide complexes. Then we have also discussed about the absorption spectra of lanthanide. Okay, so we have seen that in case of lanthanide we see very sharp bands of absorption spectra. Okay, so in case of transition elements, if they form complex and they give absorption spectra, they show broad spectrum. Okay, the peaks that you observe are broad in case of transition elements, but in case of lanthanide we get sharp line like spectra. Line like spectra means the peak whatever we get, and why we get that peak we have explained in last lecture, that there is transition of electron. Okay, transition of electron means whenever energy is given to the electron, they go to the higher energy level. Okay, initially they are at lower energy level, and when energy is given to them in the form of light or some other factor, the go to the higher energy level. Okay, so that is called as transition of electron. And in case of lanthanide, all these various factors are because of your 4f electron. Okay, so many consequences and so many properties we have discussed, that all are because of the 4f electron. And what is the main reason behind that? That these 4f electrons are well shielded of 5s and 5p electron. Okay, we know in the starting of the chapter they are n minus 2 electrons. Okay, n minus 2, n minus 1 and n. So these electrons which actually take part in the reaction are well shielded or well protected by outermost electrons. Okay, that orbital 4f orbital is not the outermost orbital, it is inside, और उसके बाहर कौन है? 5s और 5p ऑर्बिटल्स. ओके, तो ये जो ऑर्बिटल है वो
अंदर है, एटम का थोड़ा अंदर है, एंड देयरफॉर though the electrons are taking part in the reaction, they have limitation. Okay, so they do not interact with the ligands, they do not show much more effect of outermost ligands, and therefore they are well protected. So ये जो transition होते हैं, that is called as FF transition. अंदर के अंदर ही वो ट्रांजिशन होगा, एंड देयरफॉर यू गेट द sharp absorption band for absorption spectra. Similarly, you get the combination of spin and orbital momentum in case of magnetic momentum. और ये lanthanide contraction भी उसी की वजह से है. So all these factors or all these consequences are because of the 4f electrons which are well shielded by the outermost electron. Okay, so all these properties are because of our 4f electron. So today we will discuss about the very next property, that is ability to form complexes. Okay, so in case of lanthanide, they form complexes, and what are their properties, that we will discuss over here. So see here, in case of lanthanide, the ionic charge is +3, that we all know that they form compounds or complexes where the lanthanide ion always carry +3 charge. Okay, तो वो तो हमेशा सेम रहेगा. +3 charge is also very high, it is not +1 or +2, it is +3 charge, but the ionic radii is also very high. Ionic radii मतलब in the ion the distance from the nucleus and the outermost electron, वो जो रेडियस है किसी भी बॉल या सर्कल का रेडियस होता है ना, फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट पेरिफेरल ऑर्बिटल, उसी तरह एटम में भी क्या होने वाला है, देयर विल बी आयोनिक रेडियस, एंड दिस आयोनिक रेडियस इज ऑल्सो वेरी हाई इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स. सो बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपन्स, द चार्ज टू रेडियस रेशो इज लो. ओके, चार्ज टू रेडियस रेशो क्या है, देखो ब्लैक में दिखाया है, चार्ज अपॉन रेडियस. अगर ऐसा आप रेशो लेंगे है ना, तो चार्ज अगर हायर है लेकिन रेडियस भी हायर है ना, इफ द डिनोमिनेटर इज हायर देन द रेशो विल बी वेरी स्मॉल. जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो 1/3 और हम लोग ले रहे हैं 1/5 और 1/10, तो इसमें सबसे छोटा रेशो किसका आएगा, 1/10, राइट. मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अगर जितना बड़ा होता जाए तो योर रेशो विल बी स्मॉल. जैसे 1/2 इट विल बी 0.5 है ना, लेकिन 1/10 इट विल बी 0.1. तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना रेशो कम होगा, दैट इज शोन विद दिस ब्लैक लाइन. तो रेशो लो होगा. उसी तरह लैंथेनाइड के केस में चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज तो सेम है +3, और जो आयोनिक रेडिया है वो बड़ा है, दैट वैल्यू इज हायर, सो चार्ज अपॉन रेडियस रेशो बिकम्स लो, है ना. ऊपर का चार्ज है +3 और रेडियस बड़ा है तो ये रेशो छोटा होता जाएगा. सो देयरफॉर वी से दैट द चार्ज टू रेडियस रेशो इज लो, और ये लो रेशो होने के वजह से क्या होगा, हेंस लैंथेनाइड शो पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जितना ये चार्ज अपॉन रेडियस रेशो हाई होगा उतना वो आयन क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्सेस. रिमेंबर दिस, इफ चार्ज अपॉन रेडियस रेशो इज हाई देन देयर विल बी मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशो लो है, तो देयरफॉर दे विल शो पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. तो जितना ये रेशो लो उतने उस आयन के कंपाउंड आपको कम मिलेंगे, राइट. दे विल फॉर्म वेरी लेस complexes और compounds as compared to transition metal. तो transition metal में ये रेशो थोड़ा हाई होता है तो they will form more complexes, but in case of lanthanide charge to radius ratio is low and therefore there is a less tendency to form complexes. So see the last point, therefore lanthanides can form limited number of stable complexes. इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर चार्ज टू रेडियस रेशो हाई होता है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं और वो स्टेबल भी होते हैं. ओके, बट इन केस ऑफ लैंथेनाइड दे हैव वीकर टेंडेंसी और द रेशो ऑफ चार्ज टू रेडियस इज लो एंड देयरफॉर दे हैव पुअर और weaker tendency to form complex, and whatever complexes are formed they are also
लेस स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। वी नो द रूल ऑफ दिस यूनिवर्स, जो ज़्यादा स्टेबल है ना, वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा। जो वीक है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो सिमिलरली द लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट हैव अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। Why? What is the reason behind that? We all know now, we have seen this line many times, that in case of lanthanide, the 4f electrons in lanthanides are deeply buried inside the atom and well shielded by outer electrons. We know all these things now, that ये सब क्यों होता है in case of lanthanide, कि हमेशा उसके जो 4f इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू नाउ मेनी टाइम्स दैट वेन एवर देर इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, हर एक लैंथेना में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जैसे कि लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे देर विल बी एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इट एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल, और ये जो 4f ऑर्बिटल है, ये 4f ऑर्बिटल इज the 4f orbital is well buried with the 5s and 5p orbitals, and therefore they cannot take part in the bonding during formation of complex. ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, और ये ऑर्बिटल दे आर वेल शील्डेड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर ऑर्बिटल, therefore they cannot take part in the bonding during formation of complex. Formation of complex मतलब outermost electron always take part in the reaction to form a bond, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े अंदर है ना, तो therefore they will not take part in actual formation of bonding, they will not take part in actual formation of complex. Okay, so the 4f electrons hardly get interaction with ligand field. ये जो outermost electrons आने वाले हैं कहाँ से, ligand से, ligand मतलब द चिलेटिंग एजेंट, और जिसके साथ आपका लैंथेनाइड क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे है ना। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट यू नीड द इनरमोस्ट एटम और आयन विच कैन बी ऑफ मेटल एंड द आउटकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आपके कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड फील्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट हार्डली एनी इंटरेक्शन विथ लिगैंड फील्ड। बाहर से जो लिगैंड्स जे कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे, दे विल नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विथ 4f इलेक्ट्रॉन्स। द लिगैंड फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जीज आर लो एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्सेस आर लेस स्टेबल। इन केस ऑफ लैंथेनाइड व्हाट हैपन्स, द स्टेबिलाइजेशन एनर्जीज आर लो। ये पहले ही एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने कि लिगैंड फील्ड और लिगैंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का भी हाई होना ज़रूरी होता है। इफ़ द एनर्जी इज़ हाई देन ओनली इट विल बी स्टेबल, और स्टेबल होगा तो ही ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लिगैंड फॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स लैंथेनाइड के साथ, उनकी स्टेबिलाइजेशन एनर्जी ही क्या है, लो है, एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्सेस आर लेस स्टेबल। वेरी सिंपल थिंग, आप कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है आपको शायद कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक अंदर कोई तो भी एटम होगा, है ना, या आयन होगा जैसे कि लैंथेनाइड, और उसके सराउंडिंग क्या है, कुछ लिगैंड्स है जो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे। तो इन दोनों का इंटरेक्शन अगर अच्छा है देन ओनली दे विल हैव स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऑफ स्टेबिलाइजेशन, और अगर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो ही वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल, है ना। लेकिन अगर इंटरेक्शन लेस है, जैसे कि आप लोगों का और हम लोगों का इंटरेक्शन अगर लेस है, देन देयर विल बी नो गुड बॉन्डिंग, है ना, एंड देन द बॉन्ड विल बी अनस्टेबल, राइट। अगर आप हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन करोगे देन ओनली वी विल हैव गुड इंटरेक्शन एंड गुड बॉन्डिंग। सिमिलरली इन केस ऑफ लैंथेनाइड the stabilization energies itself are low and therefore the complex are less stable. So in case of lanthanide complexes they are mostly electrostatic. Electrostatic मतलब क्या, in case of complexes the force of attraction between lanthanide ion and ligands are mainly
इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। हम लोगों को पता है बॉन्ड क्या होता है, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवैलेंट, है ना। तो इन केस ऑफ लैंथेनाइड ये जो बॉन्ड है इनर मोस्ट आयन और बाहर से आने वाले लिगेंड्स, है ना, तो इनका बॉन्ड जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो दे आर comparatively less stable. So now what happens, lanthanide 3+ ions are class A acceptor. ये जो metals है, lanthanides are all metals and they are class A acceptor. Class A acceptor क्या होते हैं, they are hard acids, okay, and they will form bond with hard bases. They will form very stable bond with hard bases. तो ये जो lanthanides है they are class A metals or class A acceptors. Then what will happen, therefore whatever complexes they are forming, they are not very good stability, they are of not very good stability. So lanthanide form more stable complexes with electronegative atom like O and F. Okay, वो खुद क्या है, class A type of acceptors. Okay, class A type of acceptor means they are hard acid. Okay, तो उनके लिए जो हार्ड बेस है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली. सो लैंथेनाइड कैन फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक O एंड F. जो लिगेंड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना, ऐसे लिगेंड के साथ लैंथेनाइड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बिकॉज दे आर देमसेल्फ hard acid, so they will form stable complex with hard bases where they have high electronegative atoms like oxygen and fluorine. Then what is next property, they form fairly stable complexes with chelating agents like EDTA, citric acid and oxalic acid. ओके, पहले तो हमने देखा कि किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. सो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक O एंड F. जो लिगेंड जिनके अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. अभी फेयरली स्टेबल मतलब थोड़ा कम स्टेबल किसके साथ फॉर्म कर सकते हैं, द चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA, साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ थोड़ा लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स लैंथेनाइड फॉर्म कर सकते हैं. फिर उसके बाद द कॉम्प्लेक्सेस विथ लिगैंड्स हैविंग नाइट्रोजन एज डोनर एटम लाइक इथिलीन डायमाइन आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल. मतलब ऐसे लिगैंड्स जिनके अंदर कौन है, नाइट्रोजन, ओके, एज अ डोनर एटम. तो नाइट्रोजन किसके अंदर हो सकता है, इथिलीन डायमाइन. देखो ये पूरा मॉलिक्यूल होना चाहिए. मॉलिक्यूल मतलब not a single donor atom, it should be polydentate ligand. ओके, तो ये पूरा मॉलिक्यूल होगा. जैसे कि इथिलीन डायमाइन, इसके अंदर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो उसके साथ ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. एंड फाइनली इन केस ऑफ लैंथेनाइड दे फॉर्म वेरी फ्यू कॉम्प्लेक्सेस विथ मोनोडेंटेट लिगैंड लाइक अमोनिया, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा. तो ये मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, they are the ligands that has only one atom that coordinates directly to the central atom in a complex. तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम कौन है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम है लैंथेनाइड. तो मोनोडेंटेट लिगैंड मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम अंदर के साथ बॉन्ड बनाएगा. जो अपना सेंट्रल एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक एटम पार्टिसिपेट करेगा. सो ऐसे कौन होते हैं, अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन वगैरह काम कर सकता है, या क्लोराइड आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम क्या करेगा, रिएक्शन में पार्ट लेगा. तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगैंड के साथ ये वेरी फ्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ इथिलीन डायमाइन में भी जो नाइट्रोजन है वो क्या है, इट इज़ सॉफ्ट बेस. ओके, तो वो इजीली हार्ड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. और अभी हम लोगों ने देखा कि अवर लैंथेनाइड्स आर hard acids, right? So therefore they will not react easily with the nitrogen. Okay, so therefore we have seen that this type of complexes are very few. एक तो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके साथ फॉर्म करते, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर O एंड F है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है. उसके बाद EDTA और साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इनके साथ
थोड़ा कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड फाइनली जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उनके साथ तो वेरी फ्यू कॉम्प्लेक्सेस आर एग्जिस्टिंग। ओके, सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स टू फॉर्म एबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो और इनके प्रॉपर्टी क्या है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू.